मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती यूनान के करीब हादसे का शिकार, जिसमें 298 के करीब पाकिस्तानी हलाक हो गए। इस सिलसिले में गुजरांवाला के नवाही इलाका कश्मीर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद इस हादसे का शिकार हुए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी सरदार महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला कैंट में मौजूद हूँ, जो महाजिरीन ने जम्मू कश्मीर 1965 की और इस गुजरांवाला ज़िले की सबसे बड़ी महाजिरीन की बस्ती है, जहाँ पर जो कश्ती हादसा हुआ यूनान में लीबिया से जाते हुए इटली, उसके 3 नौजवान इस हादसे में शिकार हुए, जिनमें मोहम्मद अमजद बेग, मोहसन मुग़ल और तीसरा जो है वो मोहम्मद हबीब जराल। ये 3 अफराद और तीनों शादीशुदा है और एक तो अपने वालदैन का अकेला वारिस मोहम्मद मोहसन, जो वालदैन और उनका वालिद जो सरकारी मुलाजम था, उसने अपनी घर बेच कर जमा कुंजी सारी उस पर ख़र्च की। इसी तरह दूसरे जो अफरीक हैं उनका भी यही हाल है। गरीब घराने से दोनों का तल्लक था। तीनों अफराद शादीशुदा हैं और आज तक ना यहाँ के जो MLA चौधरी मकबूल गुज्जर, MPA जो यहाँ से थे मोहम्मद बिलाल फरूक ताड़र और MNA महमूद बशीर विरक, और कोई भी सियासी और समाजी शख्सियत ने उस तरह का आके यहाँ पे इनके लिए सर पे शफकत का हाथ नहीं रखा, ना कोई हमायत, कोई मदद के लिए कोई ऐलान किया। और इन सब से पूछेंगे कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें कैसे ये लोग गए और कैसे ये वाक़या हुआ और आपसे कहाँ तक राब्ता था। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद अमजद जो बेग, उनके वालिद से और उनके भाई से। जी, मेरे साथ मोहम्मद अमजद बेग के भाई और उनके वालिद मौजूद हैं। जी, आप क्या कहेंगे ये जो सानिया हुआ है? अमजद तो भाई लीगली तौर पर लीबिया गया, वहाँ से उसका अचानक प्रोग्राम बना, कैसे बना? जी अचानक ही प्रोग्राम बनया ਉਹਦਾ, पर वो गया ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ठीक है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਸੀਂ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੇਮ ਗੂਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ। ਮੰਮੀ ਹੋਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੂਨ ਇਟਲੀ ਬਾਈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਪੈਸੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਪਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। 4 ਰੁਕਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ DNA ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ DNA ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, DNA ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਆਮ ਭਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ 3 ਲੜਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ 2 ਸ਼ਿਪਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਗਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਨਾਮ ਸੁਣਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਲੀਬੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੀਬੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪਰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। लेकिन ਹੁਣ ਇਹ है कि मैं शबाज शबीर से साथ और मैं उसकी अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इधे कोई ना कुछ इधर मिलना चाहिए, चाहे जिंदा है मुर्दा है जो कुछ भी है। देखो असी सुबह रात को इंतज़ार कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, रात को 2-3 बज जाने रात को। और सुबह फिर भी असी कहने कि चलो किसी पासे कोई सानू कोई ना कोई सुराख मिले, और जब तो कोई नहीं सानू मिल रहा। इस वास्ते मैं दोबारा अपील करना वा शबाज शबीर से, ये सानू जल्द से जल्द इहदा कुछ ना कुछ करे। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ शादीशुदा सुना 2 बच्चे ने? जी 2 बच्चे गए ਉਹਦੇ, और एक बेटी जिस वक्त तो ਇੱਥੇ ਸੀ देखी, उसके पास बेटा नहीं उन्हें देखा। और ਉਹਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇਹ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਦਾਈ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਵਾਲਿदैन ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਫੌਰਨ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਸ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ नहीं है। चलो जी, मेरे साथ जो कश्मीर कॉलोनी के दूसरे फ़र्द मौजूद था, मोहसन मुग़ल, उसके वालिद मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक मुग़ल मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे पूछते हैं। जो एक सरकारी मुलाजम थे, कुछ अर्सा पहले वो रिटायर हुए, तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस बच्चे के ऊपर ख़र्च की और उसको बैरून मुल्क भेजा। तो इनसे सारी ये सूरत हाल जानते हैं। जी फ़ारूक साहब, सबसे पहले मोहसिन कितने अरसे से बैरून मुल्क गया, कैसे गया? ये 5 साल पहले ये लीबिया में उधर गया है, तुर्की में। तो तुर्की इधर 1.5 साल रहा इधर। 1.5 साल के बाद ये डंकी का चक्कर उधर कहीं बाहर जाना, डंकी लगानी है। मैंने उसको वापस मंगवा दिया। मैं कहा नहीं, जेन्युइन तरीके से आपको बाहर भेजेंगे, ऐसे हम नहीं ये करेंगे। 5 साल के 1.5 साल के बाद ये वापस आया, तो आके इसने ना स्टील का काम इसको आता था, थोड़ा बहुत करना शुरू किया है। तो ऐसे दोबारा इसको बहुत सवाल हो गया कि मैंने बाहर जाना ही जाना है। यहाँ के हालात देख के, मुल्की हालात देख के, कोई गुर्बत देख के, तो इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा कि आप अबू जी मुझे बाहर भेजें, अबू जी मुझे बाहर भेजें। मैं कह चलो बेटा ठीक है, आपको भेजते हैं। फिर मौसम को कुछ एजेंट मिले हैं, तो उन एजेंटों ने ऐसे चक्कर इसको दिए हैं कि जी आपको हम 15-20 दिन में आपको बाहर भेज देंगे।
तो उन्होंने कहा इससे पासपोर्ट लिया, शनाख्ती कार्ड लिया, लेके इसका जी इसको ये जेल में जा रहा था बाइकें छोड़ने के लिए। वापस आया तो रास्ते में इसको फ़ोन आ गया जी कल आपकी फ़्लाइट है लाहौर से। तो बड़ा खुश हुआ, फ़ोन किया मैं भाई मुझे कॉल आ गई है, कल मेरी फ़्लाइट है तो आप मेरी शॉपिंग कर लें। लीबिया कितने अरसे से आप गया हुआ था? ये अरसे से? ये लीबिया अभी की जब गया है, हाँ, अब ये 14 दिसंबर को गया है। 14 से जी। 7-8 माह पहले। जी जी ठीक हो गया। तो इस दौरान आपसे रब्ता रहा? जी रब्ता रहा, बातें करता रहा। तो यहाँ से बाई एयर गया? यहाँ लीबिया तक बाई एयर गया है ये। लीगल जर्नी। जी। तो उसके आगे आगे उन्होंने कहा जी के साथ क्या मायदा? जी मायदा ये था कि हम इसको ना बाई एयर भेजेंगे। तो बाई एयर का 2-3 महीने उन्होंने लारा लगाया जी आज भेजते हैं, कल भेजते हैं। फिर जब हमें पता चला कि ये कह रही थी वो रहा कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है तो आपको शिप में भेजेंगे। शिप दिखाइए, बड़ी शिप दिखाइए। मैं बेटा ने दिखाई है, मैं ये शिप है अबू जी, इस पे कह रहे हैं आपको भेजना है। मैं कहा यार ये तो गैर कानूनी है, ये पे तो गलत काम है। कहता अबू जी कोई बात नहीं, चला फिर जैसे भी होगा। तो फिर मैंने एजेंटों को बोला भाई आप ऐसा करें, हमारे बच्चे को ना वापस भेज दें। पता नहीं उस बच्चे को क्या क्या वो जिद्द देते रहे, उससे फ़ोन करवाते रहे, घर फ़ोन करो जी, कोई ऐसा मसला नहीं है, बाइज़त आपको लेके जाएंगे, बड़ी शिप है, कोई ख़तरा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे झांसे उसको देते रहे हैं। हमें भी करते रहे। तो इसी चक्कर में दिन गुजरते गए। तो मैंने फिर भी मैं इसरार नहीं किया, मैं कहा यार बेहतर है वापस भेज दो। एक हफ़्ता पहले मेरी बात हुई एजेंट के साथ, मैं कहा यार हम उसको बाहर नहीं भेजने चाहते, अब लीबिया के पैसे आप काट लें, जितने खर्चा आपने किया है, आगे से पैसे भी चले ना दें, हमारे बच्चों को वापस भेज दें। नहीं, ये आपको कितने लाख में हुआ, या डन पे था या आपने पेमेंट सारी कर दी थी? पेमेंट सारी उन्होंने ले ली हमसे, 22 लाख रुपये उन्होंने लिया हमसे। तो लेके सलियाँ देते रहे, आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, आज भेजेंगे, कल भेजेंगे। 8-8 घंटे बाद दीवार के साथ लगा के खड़ा अगर करके यही 22 लाख अगर पाकिस्तान में आप लगा के जी यही कारोबार करते तो 1.5-2 लाख तो बंदा कमा ही सकता है। इस बारे में नहीं कभी आपने अपने बेटे को या मैंने हाँ जी मैंने कहा बेटे को, मैं बेटा छोड़े बाहर का वो तो आपके सवार है, मैं इधर ही आपको दुकान डाल के देता हूँ, मैं दुकान पे बैठ जाऊँगा, मैं नौकरी छोड़ दूँगा तो बाहर आप काम करें। बेटा मेरा मुतमिन नहीं हुआ, नहीं अबू जी इधर लोग खा जाते हैं, ये पैसे नहीं देते टाइम से, इस तरह के मुल्क के हालात ऐसे हैं। तो अबू जी इधर नहीं, मैंने एक बार आप यकीन करें मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूँगा, तो मैं आपको भेज दूँगा। तो आपके बेटे की शादी हुई थी? बच्चे जी एक बेटी जी। ठीक हो गया। तो आखिर पे जब कोई बात जब जाने से पहले आपसे कोई हुई उनसे खास? हाँ जी, जाने से पहले एक दिन मेरे साथ काफ़ी लंबी चौड़ी बात उसकी हुई है। कहता अबू जी बस दुआ करें, तो कल या आज रात को हमने निकल जाना है, क्योंकि एजेंटों ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया हुआ है, लिस्टें वगैरह बना दी हैं, जैसे भी होगा कल आप लोग या आज रात को चले जाएंगे। ये फिर उस दिन नहीं गए, जुमेरात को नहीं गए, ये फिर जुमे को निकले हैं। तो उसके पहले अपने मिसेस से बात की है, मेरे साथ बात नहीं हुई। कहता है उसके मूवी दिखाई है, हम ये शिप में बैठ गए हैं, बस अब शिप चलना शुरू हो गई है। हुकूमत वक्त से आपका कोई मुतालबा कि क्या आपकी हेल्प करे इस मुश्किल की घड़ी में? उसकी घड़ी में हुकूमत जितना कर सकती है कर ले, इन डाकू को पकड़ें जो लोगों के बच्चों को बरगलाते हैं, तंग करते हैं, उनको ऐसा तैयार करके बच्चे घर वालों को तंग करते हैं, तो बच्चे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बच्चों की खातर। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, इनकी कुछ होनी चाहिए रस्साकशी इनकी। जो 104 लोग की बॉडी मिली है जी, और आपका डीएनए भी हो गया होगा? जी डीएनए तो कल हो गया हमारा डीएनए। तो उसमें अगर बॉडी आपकी मैच हो तो आपकी कोशिश होगी कि आप पाकिस्तान जी लेके आएं? इंशाल्लाह। मुझसे भी यही मुतालबा ये हुकूमत के साथ मुतालबा, अगर हुकूमत बजा दे हमारे पास तो हमें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। अगर गवर्नमेंट मुलाजिम रहे जी यही है कि सफारती सतह पे कोशिश करके जी आपके ऐसे बच्चे के बारे में वो जितने भी पाकिस्तानी से जी, जी। मालूमात इकट्ठी करके जी पूरी मुकम्मल मालूमात दी जाए। इंशाल्लाह। हमारे से अभी तक कुछ खास पेशरफ्त नहीं है। अभी नहीं, अभी तो डीएनए टेस्ट हुआ है, इसकी ये डीएनए टेस्ट उधर जाएगा, वो मैच करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे ये डेड बॉडी इसकी है किसी और की है। ये अभी कम मेरा ख्याल 10 से 15 दिन
हो सकता है लग जाए इसको, ऐसे हो जाए तो अच्छी बात है। चला जो भी है हमें कंफर्म तो होना कि ये हमारा बच्चा ही है। तो दुआ को सबके बच्चे को अल्लाह मियां सलामत रखे, खरीद से हो। जो बाकी बच्चे जो कुछ नहीं मिल रहे हैं, ये मिला तो 112 बच्चे 12 पाकिस्तानी हैं, वो हजार है माशाल्लाह। तो बाकी कुछ दूसरे मुल्क के भी हैं जो 104 जी। ये तो नहीं कि सारे पाकिस्तान। नहीं पाकिस्तानी सिर्फ 12 ही हैं। जी, इस वक्त जो तीसरा फ़र्द था कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला कैंट से, मोहम्मद हबीब जराल, उनके बड़े भाई मोहम्मद राशिद जराल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कितना अर्सा पहले हबीब घर से निकला और इस सफ़र के लिए, तो बाकी बात भी उनसे करते हैं। जी हबीब, आपसे कितने नंबर पे था और कितना अर्सा पहले घर से गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब जो है ना मुझसे छोटा था और 4th नंबर पर था, और तकरीबन 2 मंथ पहले जो है ना वो लीबिया की तरफ रवाना हुआ था। ठीक हो गया। तो लीबिया लीगल तरीके से यहाँ से गया? जी एज आ प्लम्बर जो है ना वहाँ पर जो है ना लीबिया की तरफ गया था, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, जो है ना वर्कर के लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए जो है ना वहाँ पर गया था। सही। तो इससे पहले भी किसी मुल्क में वो गया? नहीं पहली दफ़ा गया? ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसका। पहले जी जी। सही। तो जब उसने आगे जाने का सोचा इटली या दूसरे मुल्क में, तो इस हवाले से आपसे मशावरत हुई, आपने इजाज़त दी उसे? हाँ जी हमने तो इजाज़त तो नहीं दी हमने, लेकिन वो काफ़ी इंसिस्टेड था कि मैंने जाना ही जाना है। ठीक हो गया। हाँ, तो इसलिए जो है ना फिर एट द एंड हमें जो है ना मजबूरन जो है ना वो उसे फिर परमिशन देना पड़ी। तो कितना अखराजात के ऊपर डन हुआ, वो एजेंट वगैरह से या कोई दूसरा कोई आपको पता था या नहीं? नहीं इसके बारे में जो है ना वो नहीं पता था इसके बारे में। ठीक हो गया। और उसकी शादी हुई थी? कितने बच्चे हैं उसके? जी उसकी शादी हो चुकी है, और एक बेटा और एक बेटी है। एक बेटा और बेटी। जी। तो कितना जाने से कितने दिन पहले आपकी उससे बात हुई, या एक दिन पहले या 2 दिन पहले बात हुई इस हादसे से पहले? हाँ, तकरीबन जो है ना वो 9 तारीख को वो रवाना हुए। उससे पहले जो है ना नॉर्मल रूटीन में तो बात होती रहती थी। ठीक है, काम से जब फारग होता था तो फिर वो आम रूटीन में वो घर का बात करता रहता था। जी। ठीक हो गया। तो आपको इस हादसे से कितने दिन बाद 9 तारीख के कितने दिन बाद पता चला कि ये हादसा हो गया? मैं तो अपने कामों में ज़्यादातर बिज़ी रहता था, तो तकरीबन जो है ना मुझे जो है ना राउंड अबाउट हादसे से एक दो हादसा हो चुका था, 1-2 दिन के बाद ही मुझे पता चला था। जी। ठीक। तो इस हवाले से आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, या इंटरनेशनल सतह पे क्या आपकी मदद की जाए, और आपको क्या मालूमात चाहिए? हमें तो मालूमात यही, फ़िलहाल तो हमें ये फिलफोर मालूमात यही दी जाए कि जो है ना आइदर के हमारा भाई जो है ना वो ज़िंदा है या अल्लाह को प्यारा हो चुका है, ताकि ना कम अज़ कम हम जो है ना हमारी जो एक जो माइंड है वो एक तरफ जो है ना फोकस तो हो ना, कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियर पिक्चर जो है ना वो क्लियर हो जाए, कि पता चल जाए कि आगे जो है ना हमें करना क्या है। जी। तो हुकूमत ने अब DNA टेस्ट भी लेना शुरू कर दिए हैं? जी वो हुकूमत ने जो है ना फिलफोर जो है ना वो एक दिन जो है ना हमने डाटा अपना प्रोवाइड किया, और वेरी नेक्स्ट डे जो है ना हमने जो है ना DNA टेस्ट हो चुका है। तो जो 104 बाडियाँ हैं उसमें से भी चेक होगा कि जी वो, हाँ बिल्कुल इसी 80 है। हाँ, तो अगर वो जो रिकवर हुई हैं बाडियाँ उनमें से अगर हो तो वो बाडी आप कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आ जाए? अगर जी वो तो इसीलिए तो हम तो चाह रहे हैं कि हम अपने हाथों से जो है ना, अगर तो अब हम तो फ़िलहाल तो हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह हमारा भाई ज़िंदा होगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए 2 स्टोरियाँ चल रही हैं कि उस वक्त ये 2 कश्तियाँ निकली थी, तो एक दूसरे मुल्क में स्टे हो गया, या कुछ ऐसी कोई कहानियाँ हैं, या इसमें कुछ अदाकर? अभी फ़िलहाल तो ये स्टोरीज़ कुछ और चल रही हैं कि जैसे हमने जो है ना वो भाई के लिए दुआ के लिए हमने जो है ना वो फेसबुक के ऊपर जो है ना एक गुजरांवाला पेज पर हमने तस्वीर जो है ना वो अपलोड की, तो उसी दिन जो है ना विदिन 1 और 2 आवर जो है ना हमें जो है ना रीट्वीट कर दिया गया कि जी आप जो है ना लवाहिकीन जो है ना परेशान ना हो, आपका भाई जो है ना वो ज़िंदा है।
ठीक है। और इसके बाद जो है ना एक और जो है ना ख़बर चली कि ये कुछ जो है ना माल्टा में जो है ना वो बंदे जो है ना अवेलेबल हैं और उनमें भी जो है ना बाई का नाम मौजूद है। तो इसलिए हम होपफुल हैं कि अल्लाह ताला ने हो सकता है कि ये हमें जो है ना एक किरण दी हुई है कि इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला पर उम्मीद रखते हैं कि नाम डिक्लेयर भी हुआ था हबीबुर रहमान, उस वजह से भी कंफ्यूजन थी कि आपका भाई है। तो इंशाल्लाह जो है ना हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भाई वापस ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। आखिर पे आप कोई वज़ीर आज़म से या हुकूमत से ख़ास को मुतालबा तो हम तो क्या तावन करें आपसे? हम तो फ़िलहाल तो यही हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान में ही जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना इतनी अवेलेबल हो जाएं कि हमें जो है ना और हालात इतने बेहतर कर दे गवर्नमेंट के किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम तो चाहेंगे कि जो है ना चलो हमारा भाई जो है ना अगर इस राह में अगर वो चला भी गया है तो हम चाहेंगे कि कम अज़ कम ना अगर उसकी कुर्बानी लग भी गई है तो हुकूमत जो है ना ये ज़रूर सोचे कि हमने जो आने वाली जनरेशन है ना जो यूथ है उसके लिए जो है ना कम अज़ कम अपॉर्चुनिटीज़ मौके इतने पाकिस्तान में ही अवेलेबल कर देंगे ताकि वो बाहर जाने के बारे में और सुहाने ख्वाब देखना ही छोड़ दें वो। और पाकिस्तान जो है ना कोई भी गवर्नमेंट आए ना वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर दे तो मेरा हर करता है ऐसे काम के रोकथाम के लिए अपना इक़दाम करें। हाँ वो तो वो मस्ट उन्हें करना चाहिए ना ज़रूर। ठीक हो, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मोहम्मद राशिद जराल मौजूद थे जो मोहम्मद हबीब जराल के बड़े भाई हैं और मेरे साथ इनसे पहले फ़ारूक मुग़ल साहब थे और मोहम्मद आरफ और नजम बेग साहब थे। इन तीनों जो अफराद हैं जो कश्मीर कॉलोनी से इनका आबाई तल्लक है, इन सब का एक ही मौक़िफ़ है कि हुकूमत हमें फ़िलफ़ौर एक फैसिलिटी अता फ़रमाए कि हमें वो लिस्ट प्रोवाइड की जाए और हमें डिक्लेयर किया जाए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस हालत में हैं और अगर वो ज़िंदा हैं तो उनके बारे में मालूमात दी जाए और अगर वो खुदा न खास्ता इस हादसे में शहीद हो गए हैं तो उनके बारे में हमें पूरा मालूमात दी जाए और हमें हर तरह का मालूमात सफारती सतह पे कोशिश करके हमारे लिए रास्ता बनाया जाए और इंटरनेशनल सतह पे भी और कौमी सतह पे ये आवाज़ उठाई जाए कि इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि रोज़गार के मौक़े फ़राहम करें कि नौजवान सुहाने ख्वाब बैरून मुल्क जाने के जो देखता है वो पाकिस्तान में पूरे किए जाएँ और पाकिस्तान में जॉब, नौकरी और कारोबार के लिए वसाइल पैदा किए जाएँ कि ऐसे हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान सागर के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला कैंट। सरदार ताहिर महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए।